about the power of mobile phones and the internet. And with the help of that, how you can take your idea, your product or service or any other fact or information to digital marketing. Because nowadays, marketing is what? It's digital marketing. Everything has to be digitalized. And for this, today he's going to give us the practical exposure of this, and based on this the learnings of today's session, you'll have to complete your assignment within a time span of 1 week. And in next weekend, that is on the 11th of July, we will have the presentations of each team. Teams have been already allotted to you. You already know in which team you are and who are the team members. Probably till now you have all communicated with each other, you have come up with some ideas. If not, we are there for you. Sir is going to Ratnesh sir is going to give you some ideas, some brands on which you can carry on. So we will have a discussion about that. Ratnesh sir is going to deal with the leaders only. So I think all the leaders must know whether they have formed an idea product or not. If not, Ratnesh sir is going to help you out on which brand or product or service you can carry on your digital marketing. Over to you, sir, now. Yeah, okay, cool. So, the thing is, the objective is very simple, like making any webinar or anything in the theoretical way is not that worthy when we basically do something practically. So I tell you one thing which I understand and I learned from my journey and my thing. So I just need someone who can, share the screen, and whatever I'm saying, you have to just follow it. So it is like I'm going to demonstrate something live in front of everyone. Whatever yesterday I have, defined in my presentation. So can So yeah, anyone can help me with a yeah, screen share? Ratnesh, I'll share the screen. But have you mailed me the PPT No, or? no, 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 no. This is not PPT. You have to open Google basically. So you have to Okay, just, yeah. So whatever okay. I'm saying, just you have to open it. You have to open Mhm. Facebook and you have to open Google, both. Sure, sure. You just give me the guidance. I'll do that. Yeah. Okay. Cool. So that all everyone is going to see what we are basically doing, and everything we have to observe that you well, audience, everyone in the audience, you have to observe what I am exactly saying to Swati and what she is doing. So all these observation is the part of analysis. So I'm going to give you how to do analysis, and that you have to observe. Okay. So let's begin. Please open Google. 1 minute, just a second. I need to present the screen. I think you are able to see my screen now. No, I'm not. Ratnesh, can participants do this simultaneously? I mean, by Yeah, working parallelly on their device? yeah. Actually, they have to focus on the screen only, and whatever I'm Okay. saying, so it will be a practical one. Okay. Now my screen is presented to everyone. Yes, but have you logged on to Gmail? No, now I'm on Now, the Google page. yes, it's visible now. Okay. Yeah. So in the Google, you have to log in Facebook first. I'll have to log in with my ID. Yeah, yeah, exactly. Okay. Actually, I didn't. Okay. And in yeah. Probably it is difficult for all of us to remember the Facebook Yeah, exactly. That only I am password because because it is we all already have. Yes, logged in.
जनरली पीपल आर यूजिंग ऐप, सो ऐप में Yeah. पासवर्ड सेफ हो जाता है, तो Log out. people are not into browser. Yeah, but I tell you, the ad managers are completely more compatible in desktop, better than mobile, basically. That's right. Not That's all. right. So that's why using a desktop is Okay. important. Yeah, Yeah, I so got Facebook is login. Yeah. Yeah. Okay, cool. So now search angel broking. Angel broking. It's in a stock market firm. 1 minute, 1 minute. Hmm. I need to search Angel broking. angel broking. Yeah. Yeah, Yeah. First page. Open this. I'll open this page. Ah. Okay. Yes. Yeah. I will scroll down. We have to check the post basically. Hmm. So if you just see, this is some of our the ad, like, so today is Guru Purnima. Guru So Purnima. there is a, yeah, so this is the first post which is about Guru Purnima. Okay. Yeah. Now open another tab in Google, like another tab. You have to open another tab. Google. Now search, yeah, in the another tabs, search Facebook ad library. Facebook ad. Library. Okay, now go to the first link here, this one. Yeah. Now, yeah, now in this search box, search angel broking. Where in this? Yeah, In yeah, the yeah. search got it. box. Okay. Yeah. So Yeah. now scroll down. There's only one ad is there, I think, right? Yeah. So I tell you, so what I am trying to say, मैं बेसिकली आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ, जो फेसबुक में जब हम एंजल ब्रोकिंग जो डालते हैं वो फ्रंट एंड है, ठीक है. सो आप अभी वो फ्रंट एंड में देखोगे तो उसपे गुरु पूर्णिमा का पोस्ट है, वो ब्रांड अवेयरनेस पोस्ट है. वो हमें अवेयरनेस करने के लिए, लोगों से कनेक्ट डेवलप करने के लिए उन्होंने वो अभी जैसे, क्योंकि अभी पैंडेमिक चल रहा है इसलिए बहुत कम एड्स चला रहे हैं. मतलब we are like working with them with one of our partner agency as well. So abhi they are doing minimum ads, but earlier people they are doing at minimum 20 to 20 ads every day. So when you go in the front end, so you will find the posters where there is no there the communication will be different. Similarly, if you go with the Motilal Oswal in Facebook, like front end, and in the back end ad library, you will find which posts are content brand awareness and which posts are completely ads. So both communication are completely different. Means I really want to give you the practical experience about the brand awareness post. Now, what basically the most of the budget earlier, the first category of ad in the Facebook is brand awareness, and the second category of ad is basically traffic, and then it goes to be traffic, basically lead generation and everything. So whenever you will see any of our ad, like suppose if you see the ad library, so that is going to give you the traffic or lead generation. But when you will go on the brand awareness, very rare people invest money in the brand awareness, because brand awareness is something for creating, building the brand, for making more followers or more fans basically. And if you will investing money for business growth, for lead generation or something, so this is basically what
this is basically give you the income, basically a source of income basically. So these two things we have to do it parallelly. So this is one example. I am if anyone want to pen it down, so you can do this experiment with any of our brand, like any big brand. Suppose I'm telling you this is the way how to analyze this other competitors are doing, what other competitors are doing. For example, now you want to you are a part of Arihan Capital was my client. They are also, because of pandemic they have paused the promotions or something. But when you go in the page of Arihan Capital, things will be different, and when you will go in the ad library, again ads will be different. The only thing is the communication is different. Sometimes some ads are posted in the brand awareness places, but again the objective is for that post is completely to make people aware about their things. So this is the whole scenario. So now what I'm saying, अगर मैं आपको कोई भी ब्रांड देता हूं, मैं आपको बोलता हूं कि सपोज आप किसी इंडस्ट्रीज बाइफ्रिकेट करते हैं. फॉर एग्जांपल, यू आर डूइंग फूड इंडस्ट्री, क्लॉथिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्टॉक मार्केट. आप किसी भी टाइप के बिजनेस में हो, किसी भी स्कूलिंग, कॉलेज, एजुकेशन, हर एक उसका एक पीक पॉइंट होता है. हर एक बिजनेसेस में जो पीक बिजनेसेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारा क्लाइंट था, डायरेक्ट क्लाइंट जो था वो था अरिहंत कैपिटल. उनका जो पीक कॉम्पिटिटर है, टॉप कॉम्पिटिटर है, वो है मोतीलाल ओसवाल. तो अरिहंत कैपिटल जो है वो इंडिया में टॉप 20 कंपनीज में से एक है, स्टॉक ब्रोकर कंपनी में से. और मोतीलाल ओसवाल कम्स अंडर टॉप 5 और टॉप 1 बेसिकली. तो वो क्या कर रहा है अपनी एड स्ट्रेटजीज में. तो ऐसे ही आप जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री का आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे करना पड़ेगा. उसका फेसबुक पेज आप देखो कि फ्रंट एंड में वो क्या कर रहा है, और उसका एड लाइब्रेरी में जाके देखो कि वो बैक एंड में क्या कर रहा है. तो आपको बहुत सारे डेटा पॉइंट्स मिलेंगे जो ये आप जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आपको क्या करना है. अब क्या होता है कि किसी भी जैसे हम एक बहुत ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स तो मार्केट में होते नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल Hyundai है और टोयोटा है. Now you are both are the automobile companies, and both are selling cars, and both have the varieties of cars like hatchback, sedan and all. So if you will see the both pages, so again completely communication play a vital role to discriminate the whole scenario. So that is all about when you know how to communicate by your ad and by very better way. So the first exercise which we have to do is this only. Means with all of our audience, if we have around 40 teams, so what the teams have to do is they have to first figure out that what exactly they want to create and what are the competitor of that industry. So let me give you one very clear thing. Whenever we have to start something, so that is completely a sequence. And what is the sequence? Sequence number one is first we have to make something which is problem solving or kind of stuff. So for example, I tell you how you will identify. The first question which will be come in your head, that how you are going to identify कि मैं क्या बिजनेस करूं. पहला एग्जाम वो है, जैसे 40 लोगों की हमने 40 लोगों की टीम बनाई. अब मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आपके पास खुद का आइडिया है काम करने के लिए? नहीं है. तो आपको जो भी ब्रांड या जो भी इंडस्ट्री अच्छी लगती है, उस इंडस्ट्री को आप चूज कर लो और उसका कॉम्पिटिटर स्टडी करो. तो पहला ये टास्क एक्सरसाइज रहेगी ऑडियंस, मतलब सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए. तो अब फर्स्ट थिंग इज कि अगर आपके फर्स्ट सिचुएशन है कि आपको क्लियर है कि आपको आइडिया क्या है, आपको क्लियर है
जैसे yesterday only after doing the webinar I got some messages over my Instagram and in LinkedIn that people are sharing कि मेरा food industry का मेरा food page चल रहा है, मेरा fashion page चल रहा है, मेरा ये चल रहा है, वो चल रहा है. तो the thing is ऐसे लोग बहुत अच्छा है क्योंकि ये this is a clarity, they have a clarity, that's why they are, उनके साथ काम करना और आसान है. पर अगर किसी को ये पता ही नहीं है कि वो किस पे काम करे तो दो चीजें हो सकती है. आप खुद पे भी काम कर सकते हो, पर्सनल ब्रांडिंग. सो प्लीज नोट्स क्रिएट करिएगा, प्लीज व्हाटएवर आई एम सेइंग please create the notes. So I am going to tell you the industry where you really work so good in nowadays. So can I share my screen? Yeah. Yeah, you Okay. can do that. So hello. Yes, you're audible. Hello. You're audible. Yeah. So able to see my screen? Yes. Yeah. So this is the analysis which we have done when we will got stock with that pandemic. So I tell you, my sale team is very much worried because they are saying that Ratnesh, no one is ready to pay us. How we are going to survive? It is not possible to make, to crack sales, to get new businesses in this pandemic. No one is giving that money and all. So we have figured it out by doing the create analysis. Means you will not get this exact stat anywhere in the internet, but we have done it in the percentage basis. So first industry is media. It's 43% growing in this time. Means if you want to invest in the marketing, the people from media company are going to invest. So what are the media companies? Like there is one portal called Ghamasan.com. There is one portal called MediaBrief.com. Everyone have their teams and they really want good number of traffic. And now people are completely free. So they were definitely going to read more and more. They are going to read more video. This is all about media. So media is something which is 43% working and even growing. Then e-commerce. In what is e-commerce? E-commerce is like food deliveries really working. Then some of like clothing products are also working. Like they are shipping things in 15 days, 10 days, but they are really working. Then digital content. What is digital content? Digital content is like you create your own video and monetize by Facebook. You create your dancing, whatever acting or dancing or creativity you have, you can draft it. So that is called digital content. People are spending really good in digital content. Then online education. So online education is like, again, let's suppose online education is not just stick to just one thing. It is jumping into the hobbies as well. Like if you are good at creating if you're good at cooking, so you can create a course of cooking and you can sell that as well. It is a very basic example. If you are a working professional or a very experienced trainer or very experienced educator or very experienced teacher or something, so this is a very wonderful time. Everyone doing that webinars, seminars and all these things. So this is an industry called online education. Then healthcare. And now I tell you, healthcare is also booming like anything. क्योंकि कोई भी मेडिकल स्टोर बंद नहीं हुआ है. वो जो मेडिकल स्टोर्स ऑफलाइन भी अवेलेबल है, वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है. अगर आप एक किसी भी मेडिकल स्टोर के साथ मतलब एक अपना पेज के थ्रू या कैसे भी करके आप कुछ हेल्थ केयर के स्टार्टअप्स पकड़ते हैं या हेल्थ केयर से रिलेटेड किसी इंडस्ट्री में जंप इन करते हैं, तो डेफिनेटली वो वर्क कर रही है. फिर
हेल्थ केयर से ही मैं बताता हूँ कि हेल्थ केयर में इंश्योरेंस कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मतलब जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स की इंश्योरेंस होती है, जैसे टाटा एजीआई एंड देयर इज लाइक लॉट्स ऑफ कंपनीज हु आर प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस। They are really doing good. मतलब yesterday only I met a female, she's Khushbu, she's my banker. So she have closed around 30 lakhs of sales in just 3 months in this pandemic only. And what have she shared? She shared a health insurance because the probability is very high. Probability is very high of buying health insurance, because people will definitely they are scared, everyone is scared, don't people don't know what is the solution for this pandemic. So they used to say precaution is better than cure. So for एक दिमाग में ऐसा डाउट रहता है कि यार कुछ इंसिडेंट ऐसा ना हो जाए, तो हर इंसान एक इंश्योरेंस क्लेम या मेडिक्लेम लेना चाहता है, और वो सेल होता है क्योंकि बहुत ही कम कॉस्ट पे वो लोग सेल करते हैं। 7,000 रुपए का कॉस्ट होता है, 7,000 रुपए में आपको 5 लाख रुपीस के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जो रिटर्न है वो इतना लुक्रेटिव दिखाया जाता है कि कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदता है, और हेल्थ केयर सेक्टर इज दिस बेसिकली। तो थर्ड लास्ट है गेमिंग। गेमिंग इज बूमिंग लाइक एनीथिंग, जैसे कि बहुत सारे छोटे मोटे गेम्स हैं जो लोग गेम बना रहे हैं, उस इंडस्ट्री में भी काफी बूम आया है। तो सपोज मैं एक एजेंसी हूं, तो मैं तो एक सर्विस प्रोवाइडर हूं, तो मुझे तो खुद का जैसे मेरा जो प्रोडक्ट है वो मेरी एक खुद की डिजिटल एकेडमी है जिसमें मैं पढ़ाता हूँ। दूसरा मेरा एक खुद का ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें मैं स्टोरीज पब्लिश करता हूँ। तो मीडिया कंपनी मेरी खुद की है। आई एम सेइंग दिस। ऑनलाइन एजुकेशन में मैंने अपना खुद का मेरा एजुकेशन का वेंचर है। तो दो क्लाइंट तो मेरे सपोज मैंने ऐसा प्लान किया था कि अगर मेरे पास सारे क्लाइंट चले गए तो मैं क्या करूंगा। तो मैंने प्लान किया कि दो क्लाइंट तो हैं दो इंडस्ट्री में, बाकी सारी इंडस्ट्री के मैं क्लाइंट ढूंढ लेता हूँ। तो मुझे आई गो एंड फाइंड आउट विद ई कॉमर्स, मुझे ई कॉमर्स के क्लाइंट मिल गए, मुझे डिजिटल कंटेंट के लोग मिल गए, मुझे ऑनलाइन एजुकेशन के लोग मिल गए। मतलब मेरे पास ऑलरेडी ऑनलाइन एजुकेशन का खुद का एक वेंचर था, फिर मेरे को हेल्थ केयर मिल गया, और अभी गेमिंग के भी कुछ मेरे पास क्लाइंट्स मुझे मिल गए। क्यों? क्योंकि इनको एक्चुअली नीड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? हेलो? Yes, 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 yes. yes. या तो मैं ये जो पोस्टर्स है वैसे आपको ये डैजल के पेज में मिल जाएगा। डैजल के पेज में मिल जाएगा। तो ये जो पोस्टर था ये जो आपको डैजल के पेज में मिल जाएगा। बट अगर आप मैं आपको शेयर कर दूंगा या आप सबको मिल जाएगा वो। तो मैं ये बता रहा था, ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रही है, काफी अच्छी तरीके से वो करे। तो इनके अराउंड अगर आप अपना कोई बिजनेस आइडिया सोचते हैं तो डेफिनेटली वो वर्क कर सकता है। दूसरा ये एक प्रैक्टिकल सेशन है, वी आर डूइंग द रिहर्सल बेसिकली। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, लाइक यू कैन नॉट लर्न इट एनी स्कूल और कॉलेज। ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल गेम है, हमेशा आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, हर एक केस टू केस चीजें डिफरेंट होती हैं। अगर मैंने एक मीडिया कंपनी बनाई है, अगर आप बनाओगे तो हमेशा आपके साथ चैलेंजेस दूसरे आएंगे। मेरा स्टाइल अलग है, आपका स्टाइल हमेशा दूसरा आएगा, क्योंकि द वे आई स्पीक, यू स्पीक डिफरेंट, आई स्पीक डिफरेंट। सो प्रोबेबिलिटी इज कि हर इंसान के साथ एक मतलब अलग टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं और सारी चीजें आती हैं। पर एक चीज समझनी जरूरी है कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो पर्टिकुलरली इंसान की नहीं होती है, पर्टिकुलरली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो डोमेन की प्रॉब्लम होती है। मतलब अगर आप फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और आपको बार बार चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो चैलेंजेस आपको नहीं आ रहे हैं, एक्चुअली उस डोमेन को आ रहे हैं। तो जैसे सपोज आपने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया या एक ऑनलाइन फूड का काम करना स्टार्ट किया, तो उसमें जो भी चैलेंजेस आएंगे, तो अगर आप सीख गए कि उसको कैसे चैलेंजेस को खत्म करना है, तो आप किसी और को भी कंसल्ट कर सकते हो कि अगर वो बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो
डोमेन को डोमेन नॉलेज होना, उसका डोमेन नॉलेज अगर उसका अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा तो किसी और को भी कंसल्ट कर सकता है. So this is the power of exchanging knowledge, and that is only possible through digital only because it's seriously very fast. And this is the stuff which I'm saying. तो ये एक तो इंडस्ट्रीज हो गई. तो अगर पर्टिकुलरली हम इंटरेक्ट करते हैं तो उसके बेसिस पे आपका जहां पे भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लाई करता है, क्योंकि ये एक रिहर्सल है. इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे टीम वर्क करती है और कितना पावरफुल होता है अगर कलेक्टिवली 2 या 3 लोग भी मतलब अनस्टॉपेबल होके काम करे. मतलब एक्चुअली मतलब मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा बहुत अलग है. आई यूज्ड टू थिंक इज कि देयर इज नो नीड ऑफ thousands of people to make impactful business. You will create an impactful business by just 2 or 3 people, and it's just about your energy कि आप उसको कैसे pour कर रहे हो. Because our human brain have immense potential. It is like a super immense potential. So अब क्या है कि कोई भी बिजनेस जो होता है ना, वो इसलिए नहीं स्टार्ट किया जाता है कि हमें पैसा कमाना है. पैसा इज ऑलवेज, मनी इज ऑलवेज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपर्टीज और द प्रॉब्लम विच यू आर सॉल्विंग. तो सबसे पहले आपको वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, वो गैप आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी. तो अगर इफ यू पीपल आर पेनिंग डाउन, तो थिंग इज आपको सबसे पहले ये जो मैंने इंडस्ट्रीज बनाई हैं जो कोविड में अभी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, इन इंडस्ट्री के मतलब अराउंड हमें क्या, आपको क्या लगता है आप क्या कर सकते हो, किस इंडस्ट्री में कर सकते हो, वो आप सोच लो. जिनके पास आइडियाज है बहुत अच्छी बात है, आई एम कॉन्ग्रेट्स टू देम. और जिनके पास आइडियाज नहीं है वो इन्हीं किसी इंडस्ट्रीज में फिगर आउट कर लो. अब क्या होता है कि हम पहली बात करते हैं कि एक आपको डैक बनानी है, आपको पिच डैक बनानी प्रॉपरली. डैक इज लाइक प्रेजेंटेशन. पिच डैक मतलब जो इन्वेस्टर को पिच की जाती है, जिसमें पूरी की पूरी तरह से आरओआई दिखाया जाता है बिजनेस का, उसको बोलते हैं पिच डैक. तो आपको एक पिच डैक बनानी है जिसका पहला जो टॉपिक हो या पहला जो उसका टाइटल होगा वो होगा प्रॉब्लम. कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. हर एक डोमेन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है. जैसे कि सपोज आपको एक नया ग्रोसरी स्टोर खोलना है, तो आपको उसमें ये समझना पड़ेगा कि क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, कंपटीशन बहुत हाई है. एवरीवेयर देयर इज वन ग्रोसरी सर्विसेज एंड ये वो. बट अगर आप उस पे प्रॉब्लम्स अगर आप बहुत बारीकी से आइडेंटिफाई करते हो कि सपोज मतलब लोग क्या गलतियां करते हैं, जैसे अगर सब कुछ भी आप फिर से रिक्रिएट कर सकते हो, मतलब देयर इज नो सेंसेस. अगर आप बहुत इनोवेटिव हो तो आप कुछ अपने आप इन्वेंट करोगे, फिर उसको आप मार्केट करोगे या उस पे बिजनेस लाओगे. बट अगर आपको बिजनेस करना है तो आप एक रेप्लिकेट बिजनेस भी, मतलब बेसिकली देयर इज वन बुक कॉल्ड 0 to 1. इट इज बुक रिटन बाय पीटर थील. तो पीटर थील इज द investor in Facebook and the co-founder in PayPal. He is the co-founder with Elon Musk basically. So उसने बुक लिखी है 0 to 1. अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. तो 0 to 1 में पीटर थील ने बोला कि जो बिजनेसेस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं. एक होता है 0 to 1 और एक होता है 1 to n. So 0 to 1 मतलब क्या होता है कि वो कभी भी वो चीज पहले मार्केट में थी ही नहीं और आपने उसको बना दिया तो वो डेफिनेटली बिकेगी. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं पेटीएम, इसकी पेमेंट गेटवे की. तो द फर्स्ट पेमेंट गेटवे ऑफ द वर्ल्ड इज पेपाल. उसके बाद ही पेटीएम, गूगल पे और ये सब, तो इट्स अ रेप्लिकेट मॉडल. पर द फर्स्ट इनोवेशन इज पेपाल. सिमिलरली द फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रिक कार इज एलॉन मस्क की टेस्ला. तो वो सबसे पहली कार है जो उसने एक सक्सेसफुल इलेक्ट्रिक कार बनाई. बाकी कोई भी कंपनी इलेक्ट्रिक कार बनाने में इंटरेस्ट नहीं ले रही थी क्योंकि उनको लगता था कि वो फेल हो जाएंगे एंड ऑल दैट. सो दिस इज व्हेन यू विल क्रिएट समथिंग जो किसी ने भी क्रिएट नहीं किया है, तो वो 0 to 1 होता है. आप 0 से 1 में आ रहे हो, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल वो, तो वो डेफिनेटली चलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता.
पर वो जो एक्सेप्शनल प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही कम है मार्केट में। मैं भी 0 to 1 वाली कैटेगरी में नहीं आता, मैं भी एन टू इंफिनिटी वाली कैटेगरी में आता हूँ, 1 to n वाली कैटेगरी में आता हूँ। मतलब जो बिजनेसेस चल रहे हैं हमें उन्हीं बिजनेसेस को रेप्लिकेट करके एक अपना स्टाइल डालना है, एक अपना डिफरेंस बताना है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली देयर वाज माय क्लाइंट फ्रॉम बैंगलोर, उनका योगा का एकेडमी है। तो अब योगा के एकेडमी तो बहुत सारे हैं, तो मैंने उनसे पूछा, उनका नाम राजेश है, से योगा करके उनका ब्रांड है, से योगा, SAY योगा। तो बेसिकली वो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की थी ये इंटरनेशनल इसमें योगा डे में, दैट वाज द बिगेस्ट कॉन्फ्रेंस, 1 साल पहले की बात है। तो वो मैंने उनसे पूछा कि सब योगा सिखाने वाली तो बहुत सारी एकेडमी है, व्हाई पीपल विल कम टू यू। सो उन्होंने बोला कि वी आर सिंप्लीफाइंग योगा। सो मैंने बोला कि सिंप्लीफाइंग मतलब क्या डिफरेंस है आपको? तो उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ योगा नहीं करता हूँ, मैं उनको साइकोलॉजिकली कंसल्ट भी करता हूँ, मैं उनको एक मेडिटेशन के ट्रेनर से भी कनेक्ट कराता हूँ। तो आप सोचो कि वो एक वन स्टॉप सोल्यूशन दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला ये मेरा यूएसपी है रत्नेश, अब तुम बताओ कि कैसे मार्केट करोगे। तो इन दिस वे आई गॉट इट कि एक तो योगा इज अ नीड ऑफ, सबको योगा करना जरूरी है, मेडिटेशन करना जरूरी है, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी ने इतना लेजी बना दिया है। तो बहुत सारा कंटेंट तो इधर ही मिल जाता है। स्ट्रेस और डिप्रेशन इतना ज्यादा है कि आपको हेल्थ को टेक केयर करने के लिए लोग जिम नहीं जाते हैं, पर जिम इज और नॉट हेल्दी एज वेल जितना नेचुरल योगा है। तो ऐसा बहुत सारा कंटेंट अवेयरनेस का बन जाता है। अब एड का कंटेंट बनाने के लिए यूएसपी चाहिए होती है आपको ब्रांड के लिए, कि क्या यूएसपी होनी चाहिए इसकी। तो उनकी यूएसपी क्या थी कि वो सिर्फ साइकोलॉजिकली कंसल्ट भी करते हैं और मेडिटेशन के लिए रिकमेंडेशंस भी देते हैं। तो मतलब, और फिर उनके पास कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी हैं, मल्टीपल थिंग्स, नॉट जस्ट योगा ट्यूटर, ही इज नॉट अ योगा इंस्ट्रक्टर, ही इज having a multiple bucket in his pocket, and that is offering basically. So similarly, first you have to identify the problem कि क्या दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं और आप क्या वैल्यू एडिशन दे सकते हो, या आप कैसे डिफरेंट तरीके से कर सकते हो। सो देन उसके अराउंड आपका कम्युनिकेशन डेवलप करना है। तो प्रॉब्लम फर्स्ट थिंग इज, जब डैग बनाओगे यू हैव टू, मैं फिर से रिवाइड कर देता हूँ कि आपको इस पूरे उसमें डैग बनानी, सबसे पहले आपको इंडस्ट्री आइडेंटिफाई करनी है और आपको अपना आइडिया सोचना है। पर आइडिया सोचने से पहले आपको प्रॉब्लम पता करनी पड़ेगी, और प्रॉब्लम के बाद पहला पॉइंट है प्रॉब्लम, दूसरा पॉइंट है सोल्यूशन, और तीसरा पॉइंट है एडवांटेजेस, और चौथा पॉइंट है वाई। तो अब ये 4 पॉइंट्स पे ही डैग बनेगा। पहला प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो। जैसे मैंने जब नौटंकी स्टोर स्टार्ट किया था, तो मैं वही टी शर्ट्स बनाता था जिसमें बहुत ह्यूमरस टी शर्ट्स होती थी, जिसमें लिखा रहता था कि हम किसी के बाप से नहीं डरते, बेरोजगार सिंस चाइल्डहुड, जो लोगों को पसंद है। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स, जैसे बेवकूफ.com मेरा कॉम्पिटिटर था, बट फिर भी मैं टी शर्ट्स बनाता था और बेचता था, क्योंकि मेरा ऐसा कहना था कि बेवकूफ.com का जो फोकस है वो कहाँ पे है, वो सिर्फ बड़े शहरों में है, मतलब वो Tier 1 सिटीज पे काम करता है। पर मैंने अपना स्टार्टअप केरला से किया था, बट मेरा फोकस था कि मैं और जो बॉटम लाइन, मतलब जो जैसे इंदौर जैसा Tier 2 सिटी में हम आते हैं, Tier 1 सिटी मतलब 1 करोड़ से ऊपर का पॉपुलेशन जिसका होता है वो Tier 1 है, और जिसका जो छोड़ा पॉपुलेशन कम से वी आर इनटू Tier 2 सिटीज। तो मैंने सोचा मैं Tier 2 सिटीज में बेवकूफ.com जैसा ब्रांड बनाऊंगा। तो मैंने Tier 2 सिटीज के स्लैंग्स जो होते थे, जैसे कि जबलपुर के जो स्लैंग्स होते थे, आई बिलोंग फ्रॉम जबलपुर बेसिकली, इंदौर के जो स्लैंग्स होते थे कि इंदौरी एक नंबर, तो इस टाइप के स्लैंग्स के ऊपर मैंने सोचा कि मैं टी शर्ट्स बनाऊंगा। तो इसका मतलब काम मैं सेम इंडस्ट्री का कर रहा हूं, पर मैंने उस पर यूएसपी डाल दी अपनी। तो यूएस हमने डाल दी, और उसी से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एक तरह से। तो बेसिकली क्या होता है कि प्रॉब्लम, और आप उसको प्रॉब्लम बोल सकते हो या नीड बोल सकते हो,
बेसिकली प्रॉब्लम बोलने का फायदा ये है कि अगर आप बिजनेस को हेल्प की तरह करोगे कि अब यार यू आर हेल्पिंग समवन, जैसे आप अगर टिफिन सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हो तो आप 10 लोगों को खाना खिला रहे हो या आपके 10 कस्टमर है तो आप उनकी हेल्प कर रहे हो, आप ये माइंडसेट रखोगे तो आप बहुत इजीली ड्राइव होगे, क्योंकि वी आर अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट आर्टिफिशियल एंड मनी इज एन आर्टिफिशियल थिंग। आपको ये साइकोलॉजिकली समझना पड़ेगा। आप जब बोलोगे, कोई भी इंसान कोई ये बोलेगा कि मुझे पैसे कमाने हैं, आई वॉन्ट टू मेक मनी, आई वॉन्ट टू क्रिएट मनी, ये वो, आप कितना आपके पास वो एंथुसियाज्म आएगा ही नहीं। बट आप बोलो कि नहीं यार, मुझे ना आज मैं 10 लोगों को खाना खिलाता हूँ, मैं 25 लोगों को खिलाऊंगा, फिर मैं 50 लोगों को खिलाऊंगा, और आज मेरी दुकान जो है या मेरा जो स्टार्टअप है, व्हाई आई एम सेइंग इन अ वेरी लेमन टर्म्स, देसी स्लैंग्स, बिकॉज दैट इज आवर इमोशंस, ओके, दैट इज आवर कम्युनिकेशन। सो आई एम सेइंग कि उस पे डीप में जाना है कि क्या मुझे ड्राइव करता है, क्योंकि बिजनेस जो है आप समझो कि इट्स नॉट, इट्स एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अबाउट just money, it's about something else, it's about leadership basically, you have to lead so many people, so many things। मेरे मैक्सिमम मेरे एम्प्लॉइज में से बड़े ही होते हैं एज में, उनको भी मुझे गाइड करना होता है। तो बेसिकली what is this? This is something where you have to take responsibility। I'm not a married guy but I feel like I'm a, मतलब मैं इन सबका फादर हूँ, मुझे इनको खाना देना है, सैलरी देनी है, ये करना है, वो करना है, lots of responsibilities, and that make you mature basically। So responsibility make you mature, age will never make you mature, education will never make you mature, you have to learn, get the more and more into responsibility। So the money will come and the big money will come, but it will come with the patience, it will not come with the first month, second month, third month, fourth month, at least you have to have a patience of 1 year whatever you are doing। अगर आप डिजिटल कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हो तो भी 1 साल का पेशेंस चाहिए आपको। जो लोग मैं भी ऐड बनाता हूँ कि मेक मनी ऑनलाइन इन जस्ट 3 months, बिकम अ मिलियनियर। मैं ऐड इसलिए बनाता हूँ ऐसा क्योंकि उस ऐड को देख के इंसान मेरे उसमें पूल होता है, इन होता है, फिर मैं उसको सच्चाई बताता हूँ कि देखो भाई, हाँ पॉसिबल है, ये हमारा टॉप वो है, प्रायोरिटी ग्राफ है, आप कर लो अच्छी बात है, अगर नहीं करोगे तो मिनिमम ये तो मिलेगा ही। तो देयर इज ऑलवेज अ प्री डिटरमाइंड ग्राफ ऑफ डूइंग एनीथिंग इन दिस प्लैनेट। सो दैट इज द थिंग। 1 साल का पेशेंस, 1 साल का माइंडसेट, 1 साल की प्रोग्रामिंग अपने दिमाग में इस तरह से कि हमें सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम समझ गए कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, जैसे ओयो रूम है, ओयो रूम ने ये प्रॉब्लम सॉल्व की कि बजटेड होटल्स देना स्टार्ट कर दिए, जहां उसने पहले मॉडल रेप्लिकेट किया था किसका, एयरबीएनबी का। तो एयरबीएनबी बहुत सक्सेसफुल स्टार्टअप था पूरे स्टार्टअप वर्ल्ड में। फिर जैसे और एग्जांपल एक और है उबर। उबर सबसे सक्सेसफुल स्टार्टअप है ऑटोमोबाइल में, जो मींस टैक्सी शेयरिंग एंड ऑल ऐप में। तो उबर को रेप्लिकेट किया ओला ने, इंडिया में लेके आया और उसने पूरी तरह से उसको बनाया। पर आप फिर भी देखोगे उबर और ओला में बहुत डिफरेंसेस है। ओला इज अ इंडियन वर्जन और वो मेरे को ज्यादा कॉम्पिटेबल लगता है उबर से। सिमिलरली अमेजोन और फ्लिपकार्ट में बहुत डिफरेंसेस है, क्योंकि अमेजोन का वो जो स्टाइल है वो अलग है और फ्लिपकार्ट का स्टाइल है वो अलग है। फ्लिपकार्ट देश से ज्यादा कनेक्टिंग फील होता है जब मैं फ्लिपकार्ट के साथ कुछ परचेस करता हूँ। वो तो सेम है, सेम डायमेंशन है, पर स्टिल प्रॉब्लम्स को वो आइडेंटिफाई करते हैं और चीजों को एज अ प्रॉब्लम समझ के एक एंटरप्रेन्योर या एक बिजनेस ओनर या कोई मार्केटिंग कंसल्टेंट या मार्केटर आप कह सकते हो, वो किस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, उस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस इज समथिंग which is problem and then we will go on that। तो आपको सोचो आप बहुत इजीली बिजनेस को ड्राइव करोगे। आप ये मत सोचो कि आपको कितना पैसा कमाना है, आपको ये सोचना है कि आपको कितने लोगों को और हेल्प करनी है। सिमिलरली इट्स अ वेरी क्लियर माइंडसेट। तो आपको पता है कि आपका कितना कस्टमर बेस क्या है, क्योंकि आप जब इस इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उससे बात करोगे कि अच्छा सपोज फॉर एग्जाम्पल अपन फूड स्टार्टअप की लेके बात करते हैं कि खाने का टिफिन का जो प्रॉब्लम होता है वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी था। मैंने बहुत सारे टिफिन सेंटर्स में ट्राई किया, मुझे मजा नहीं आता था। फिर उसके बाद मुझे एक मिला पर्सन, तो मैंने बोला यार आई रियली लाइक योर फूड एंड आई रियली वांट कि आप हमेशा यही क्वालिटी मेंटेन करो। तो ऐसे अगर उसको हम आगे बढ़ाते हैं, प्रॉपरली सिस्टमैटिक चीजों को करते हैं, तो हम अब वो मेरे अभी उनके पास 50 मील्स हैं
अब उनके बाद मैंने और रिकमेंड किया तो और उनके पास 10 ऑर्डर्स और बढ़ गए। सिमिलरली यही हमें करना होता है। तो डैक जो हमें बनानी है, प्रेजेंटेशन जो हमें बनानी है, उसमें सारी चीजें, सबसे पहले ये प्रॉब्लम, दूसरी है सोल्यूशन। अब प्रॉब्लम मैंने डिस्कस कर लिया, सोल्यूशन वही है कि आप उसको कैसे सर्व कर रहे हो, कैसे उसको बता रहे हो। आपका जो प्रोडक्ट होगा या आपकी जो सर्विस होगी वो सोल्यूशन होगी। फॉर एग्जाम्पल कि अभी पैंडेमिक है तो कोई की भी सैलून नहीं खुला है, तो आपके पास कुछ बार ये हेयर आर्टिस्ट जो होते हैं, मतलब बार्बर्स जो हैं, उनको आपने पैनल किया एक जगह पे और उनको मतलब होम सर्विसेज आप दे रहे हो, तो आप ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। क्योंकि मैंने ये देखा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सैलून गए ही नहीं है पिछले 3 महीने से। मैंने भी नहीं गया था, तो मेरी इतनी बड़ी सी दाढ़ी हो गई थी और अजीब सी दाढ़ी आ रही थी, तो मैं भी परेशान था। मैंने बोला ये क्या हो रहा है, बट फिर भी मैं सैलून गया। बट मेरे घर वाले अगेंस्ट थे कि मत जाओ सैलून। तो मैं ढूंढ रहा था कि कोई ऐसी सर्विसेज हो जो घर पे आए सैलून की। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसमें कहीं ना कहीं हर इंसान कोई ना कोई लैक रहता है। उस लैक के को प्रॉब्लम समझ के सॉल्व करनी होती है, तो वो होगी प्रॉब्लम, और आपका जो सोल्यूशन होगा वो आप या प्रोडक्ट होगा वो होगा सोल्यूशन। तो पहला है प्रॉब्लम, दूसरा है सोल्यूशन, तीसरा है एडवांटेजेस। उसके क्या एडवांटेजेस हैं, आप भी इसे सर्विस लेने का क्या फायदा है कि आप इसमें और क्या बेटर दे रहे हो। जैसे कि और क्या बेटर दे रहे हो, क्या एडवांटेजेस है, हर बार कस्टमर आपके साथ ही क्यों डील करे। और तीसरा जो सबसे मतलब चौथा जो पॉइंट है वो है यूएसपी। यूएसपी इज लाइक यूनिक सेलिंग प्रपोर्शन, या फिर यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि आप में अलग क्या है, आप में डिफरेंस क्या है। और अगर अभी आपको स्टार्टिंग में यूएसपी नहीं पता है तो फिर भी आप स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे आपके 1-2 कस्टमर्स बनेंगे, आप जो कस्टमर्स की हेल्प करोगे, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उनको उनसे फीडबैक लोगे, तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिन पे आपको काम करना है। और लास्ट वाला 5वां पॉइंट है जिसपे आपको काम करना है, उसको बोलते हैं आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है। तो जो मैंने पहली एक्सरसाइज बताई उससे आपको कॉम्पिटिटर मिल जाएंगे। और इसी का एक पार्ट होता है कॉम्पिटिटर एनालिसिस का। पे एक और स्लाइड आप ऐड कर सकते हो, मार्केट साइज, कि आप क्या मार्केट साइज है आपका, आप इंडिया में मार्केट करना चाहते हो या इंदौर में करना चाहते हो या भोपाल में करना चाहते हो। तो टारगेट ज्योग्राफी जो होती है वो आपको क्लियर हो जाएगी। तो मैंने मिनिमम मुझे सिर्फ 5 पॉइंट में डैक चाहिए। टारगेट ऑडियंस और टारगेट ज्योग्राफी आपके ऊपर है, आप उसको उसमें इनपुट, क्योंकि मेरे हिसाब से ई कॉमर्स या ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं तो पैन इंडिया या ग्लोबली होता है कोई भी टारगेट ऑडियंस, कभी भी लोकल लेवल पे काम नहीं करना चाहिए। ये मेरा सजेशन है, पर अगर आपको लोकली करना है, हाइपर लोकल करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से ये 5 पॉइंट होंगे, और एक में आपको टारगेट ऑडियंस और टारगेट ज्योग्राफी आपको प्रॉपरली वो करनी है, आइडेंटिफाई करनी है कि वो आपकी क्या है। तो दिस विल बी द एक्सरसाइज। ओवर द ड्राफ्ट मैंने या तो स्वाति मैम या कोई भी सारे लीडर्स को दे और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं कुछ मिनट्स का, फिर हम सबसे इंटरेक्ट करते हैं। So that was my concern. Actually, you have told the students yesterday regarding the idea of the product service on which they have to work. So I have got only 2 or 3 suggestions from the teams. Rest, I think they will decide after this session. Okay. So what I have understood initially is that they have to identify the area, like product or service for which they want to go for a campaigning, correct? Yeah, exactly. पहले तो हम एनालाइज करेंगे कि हमें किस एरिया में कैंपेन करना है, इनिशियली फॉर द सेक ऑफ असाइनमेंट। देन उसमें हम लोगों को कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करना रहेगा। लाइक हमने अगर जैसे आपने एग्जांपल दिया था सलून का, सो कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करके हम लोग होम सर्विसेज सलून के केस में डिजाइन कर सकते हैं। एंड इनिशियली हु इज गोइंग टू बी द टारगेट मार्केट जिनको हमें ये सर्विसेज पहुंचानी है, दैट दे हैव टू डिसाइड। Am I on the right track? या मतलब इसका सीक्वेंस में ही चल रही है तो ज्यादा बेटर है। प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, एडवांटेजेस, यूएसपी और 5वां कॉम्पिटिटर।
ये 5 चीजों से ही, 5 उंगलियां, 5 चीजें से ही पूरा कहानी डिसाइड होता है बिजनेस का। और लास्ट है वो है टारगेट ऑडियंस और टारगेट ज्योग्राफी। आपको सेपरेट रखना है, आपको अलग नहीं रखना है इसको, मतलब इसको इसके साथ नहीं रखना है, क्योंकि टारगेट ऑडियंस एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, मतलब उसमें बहुत एनालिसिस करना पड़ता है। पर ये 5 चीजें डैक का पार्ट है। तो ये पहले सिर्फ इसमें 5, मतलब टोटल जो डैक होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10 स्लाइड्स का होता है, 10 to 12 स्लाइड्स का होता है, जिसमें आगे ROI भी आता है कि आप इसमें पैसा कैसे रिटर्न करोगे। सपोज मैं आपको 1 लाख, मैं आपको 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए मैं आपको इन्वेस्ट कर देता हूँ आपकी कंपनी में, तो आप उसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो वो मल्टीप्लाई वाला ग्राफ भी बताना पड़ता है। पर मैं उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, मैं आधा ही बता रहा हूँ आपको। टोटल 10 to 12 स्लाइड्स होती है, मैं सिर्फ 5 स्लाइड्स का होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको 5 स्लाइड्स आइडेंटिफाई करनी, प्रॉब्लम, सोल्यूशन, यूएसपी, एडवांटेजेस एंड कॉम्पिटिटर एनालिसिस। सिंपल। सो लाइक Okay. इनका जब ये असाइनमेंट रेडी हो जाएगा तो डू दे हाँ। हैव टू वर्कआउट ऑन द मैसेज एज वेल, लाइक ये हम लोगों का Yeah. और दे हैव टू डिजाइन अ पोस्टर लाइक दिस इज गोइंग टू बी द हाँ, थिंग एग्जैक्टली। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एक आपने डैक, अभी जो इंटरेक्शन, अगर हम एक इंटरेक्शन करना चाह रहे हैं, मतलब अगर अभी ऑन दिस आई एम अवेलेबल नाउ टुडे ओनली, तो Yes. अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स अभी साथ में हैं वो मेरे से इंटरेक्शन करना चाहते हैं। पर्टिकुलरली मैं सबको 5 मिनट्स 10 मिनट्स दे सकता हूँ। वो मुझसे पूछे, मुझसे डिस्कस करे और क्लियर करे कि वो ये डैक बना पाएंगे कि नहीं, और उसको मैं क्लैरिटी के साथ बताऊंगा। अब आपके पास 1 हफ्ता है पूरा का पूरा, मतलब आज हम संडे में बैठे हैं, हम नेक्स्ट सैटरडे को मिलने वाले हैं। Yes. So We आप, had one query in the chat box that can we हाँ, work on the service. So या is सर्विस, that member still in the meeting? The या name is Parinita Jain. Parinita, are you in the meeting? Please unmute your mic and do you have an idea as to how you're going to work out on the project? Can we discuss it over here, Parinita Jain? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. I'm here. Yeah. Ma'am, I या have an idea. Like, hello. हाय परिणीता, या हाय, Uh, I listen to you, so I get an idea. Like, you told me first to identify the problem. So nowadays, the major problem is like everyone is very alone in their home. बच्चे आप बोले या आप एल्डर्स बोले तो बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और सबको कोई ना कोई चाहिए है कि सपोर्ट चाहिए है एक। मैंने ऐसा सोचा है कि हम एक ऐसा ऐप बनाए जिसमें आप कम्युनिकेट कर सको, आपको फ्रेंड्स भी मिले, साथ में आपको एक साइकोलॉजिस्ट भी मिले साथ में। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो, वो आपको गाइड कर सकते हैं कि अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसा डिप्रेस फील कर रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है। साथ में आप अलग उनके एक अलग से स्लाइड बनाए जिसमें आप फ्रेंड्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पे आप लोगों से इंटरेक्ट नॉर्मली भी कर सकते हैं, डॉक्टर्स की भी हेल्प ले सकते हैं। और साथ में जैसे कि बहुत बार होता है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि सामने वाला कितना ज्यादा डिप्रेस्ड है, तो आप उस टाइम उनकी हेल्प कैसे करोगे? आप सुसाइड कर रहे हो, पेरेंट्स को भी नहीं पता चल पाता है कि बच्चे इतने डिप्रेस्ड है। तो उसके लिए मैंने ऐसा सोचा है। इट्स अ वेरी वंडरफुल आइडिया, ऑनेस्टली, मतलब आई क्लैप फॉर इट। इट्स अ सुपर्ब आइडिया एंड इट इज अ नीड ऑफ अ मार्केट। जैसे द केस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, इफ यू जस्ट से कि इस लेवल का इंसान डिप्रेस्ड हो सकता है, तो कोई भी डिप्रेस हो सकता है। और मेंटल हेल्थ जो है, मेंटल इलनेस जो है, वो बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसपे काम करना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत अच्छा है, पर आप इस पे जो सोच रहे हो बहुत ज्यादा बड़ा सोच रहे हो, मतलब बड़ा इन द सेंस, बड़ा सोचना गलत नहीं है, अच्छी बात है, पर यू हैव टू ब्रेक इट। अगर आप बहुत बड़ा जाओगे ना, जैसे आपने बोला कि उसमें व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, मैं आई टेल यू, जब आप बोल रहे हो कि उसमें फ्रेंड्स मुझे मिले, फ्रेंड्स ऐड हो, तो आप सोशल नेटवर्क बना रहे हो एक तरह से। और अगर आप उसमें ऐसा सोच रहे हो कि सपोज उसको जैसे डेटिंग ऐप हो जाएगा, अगर वो उसमें सिर्फ, अगर आप सिर्फ लोग सिर्फ मिलने की इंटेंशन से आएंगे ना, तो और सिर्फ फीमेल और मेल इंटरेक्ट होंगे, तो वो डेटिंग ऐप हो जाएगा, जो जर्नली बहुत सारे बिजनेस का मॉडल था। पर आप जा रहे हो किस पॉइंट से कि आप लोगों की डिप्रेशन में हेल्प कर सकते हो। तो आप एक नेटवर्क बना सकते हो, जो नेटवर्क साइकोलॉजिस्ट का हो और
यही जो मेडिटेशन और योगा के ट्यूटर्स होते हैं उनका हो, क्योंकि जो एक्चुअली डिप्रेशन में सबसे ज्यादा हेल्प करता है मेडिटेशन एंड योगा। एग्जैक्टली। तो बस आपको क्या करना है, ऐसे मार्केट में ऐसे बहुत सारे योगा टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे मेडिटेशन के इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनको एक कोलैब करना है। एक उनको सपोज आपने 2 योगा टीचर रजिस्टर कर लिए, एक मेडिटेशन वाला बंदा रजिस्टर कर लिया और एक ये रजिस्टर कर लिया, क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट रजिस्टर किया, मिल जाते हैं, बहुत इजीली मिल जाते हैं। और अब आपको जो प्रॉब्लम है, मतलब जो लोग है जो डिप्रेस है, आपको एक फेज, बस आपको उसकी मार्केटिंग करनी है अब, कि इफ यू आर डिप्रेस्ड, इफ यू आर फीलिंग अलोन, इफ यू आर नॉट गेटिंग द प्रॉब्लम्स, वी गिव योर प्रॉब्लम्स फॉर, हाँ, वी आर देयर फॉर हेल्प। अब क्या होगा, एक बार जब वो आपसे इंटरेक्ट करेगा तो आप उससे फ्री सेशन उसको दे दोगे, आप उससे साइकोलॉजिस्ट के साथ फ्री कॉल करवा दोगे, राइट? तो जब आप पहले उसके साथ फ्री कॉल करवा दोगे, तो वो जब आप उससे फ्री कॉल लोगे, तो सेकेंड टाइम जब वो आएगा ना, तो उसको ये बोलना पड़ेगा कि सर देखो क्या है, पहला फ्री था, हमारा फ्री डेमो था। अब वो उतना उसको क्या, उससे कनेक्ट फील होगा ना, जब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी सही में, तो पैसे देने के लिए मना नहीं करेगा। फिर आप उससे इजीली उसको बोलोगे कि देखिए हमारा पर काउंसलिंग कॉल है 500 रुपीज, तो आपके पास 500 रुपए के अगर रोज के 10 कस्टमर्स हैं, तो 500 into 10, इट्स लाइक यू आर मेकिंग 5000 रुपीज एवरी डे। इट्स अ वेरी वंडरफुल आइडिया। तो अब ये तो इतनी जल्दी कंक्लूड हो गया, बट ये एक्सपेरिमेंट है बहुत ज्यादा इसमें। तो इसमें अगर आप अगर इसमें आप ऐप का मत सोचो, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी स्टेप बाय स्टेप बढ़ो। मतलब क्या होता है, ऐसा जो चीज बहुत आसान दिखती है ना, वो बहुत डिफिकल्ट होती है। मतलब जो सिंपलेस्ट चीजें होती है ना, वो सिंपलेस्ट हुई है, बनाई गई है। पहले आप पहला प्लेन देखोगे कि जो पहला प्लेन बनाया था राइट ब्रदर्स ने, वो कैसा बना था? वो ऐसा नहीं था जो आज की डेट में जैसा प्लेन बनते हैं। वैसे ही जब फेसबुक स्टार्ट हुआ था, तो वो वैसा नहीं था जैसा वो आज दिखता है। तो आइडिया इवॉल्व होना साइकोलॉजिकल चीज है कि आप बहुत उसको परफेक्ट सोचते हो, पर कोई भी चीज परफेक्ट होती नहीं है। मेरे हिसाब से परफेक्शन तो मिथ है, इनपरफेक्शन ही रियलिटी है। हर चीज रॉ होती है। आप कितना भी परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे, आप बोलोगे ये इंसान इस दुनिया का परफेक्ट इंसान है, कभी वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देयर विल बी अ बग। तो यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल, बहुत छोटा बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे आपको। तो अब आप इसमें क्या करोगे, इसको आपने प्रॉब्लम लिख दिया, आपने सोल्यूशन लिख दिया, आपने यूएसपी लिख दी, आपने वो लिख दिया, बस इसको आपको ही आइडेंटिफाई करना है। तो दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज। इसको प्रेजेंटेशन में करना बहुत जरूरी है। उस प्रेजेंटेशन और उसका कॉम्पिटिटर एनालिसिस जरूर कर लेना कि ऐसे कौन से लोग हैं जो ये सारी चीजें कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं, ऐसे 4 चीजें एक जगह पे नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप यूनिक हो, फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो आपको ये प्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है? और ये on this with my team and I make presentation on it. Okay, there is so one more idea about online counseling session also. I guess the student is Mimansha Anand. Mimansha, are you there? Would you like to discuss your idea? Parnita Jain, right? इसको कंप्लीट कर लेते हैं परिता। तो ये हमारा पहला एक्सरसाइज होगा जिसमें आपको प्रेजेंटेशन बनाना है अपने बिजनेस आइडिया को लेके। सिंपल, ठीक है? इस 5 पॉइंट्स के ऊपर आपको करना है। अब इसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज है वो ये है कि आपको इन सबके सोशल, जैसे वेबसाइट बनानी होती है, सोशल मीडिया पेजेस बनाने होते हैं। तो वेबसाइट बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सीखने वाली बात है उसमें। वर्डप्रेस बहुत इजी होता है, पर आप अगर फेसबुक उसका सिर्फ उसके बाद जो सेकंड 2 ही टास्क दूंगा मैं बेसिकली। पहला टास्क है आपको टैग बनानी है, दूसरा आपको कंटेंट बनाना है और उसके ऊपर एड्स रेडी करने हैं। तो व्हाट इज कंटेंट? बेसिकली आपको 2 पोस्टर्स बनाना है, 1 ब्लॉग बनाना है और 1 वीडियो बनाना है। तो टोटल जो होंगे आपको जो डिलीवरेबल्स है जो आपको मेरे को नेक्स्ट वीक तक देने हैं, वो टोटल है 5। एक आपका प्रेजेंटेशन, 2 पोस्टर्स और एक आपका ये 1 ब्लॉग और 1 वीडियो। सिंपल। तो बहुत इजी। अब उसके बीच, उसके अराउंड और आपको जो भी डिस्कस करना हो, यू कैन डिस्कस विथ मी। सो दिस 2 थिंग्स विच यू हैव टू डू, बेसिकली प्रेजेंटेशन बनाना है और आपको फेसबुक मतलब सोशल मीडिया उसका सेटअप करना है, और या उसके पोस्टर, उसका कंटेंट क्रिएट करना है।
जो भी आप करना चाहें. Sorry to interrupt, Pratnesh, but I guess the video creation would be a bit difficult for these participants. That is I understand, but the हाँ. thing is आज की डेट में बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे एप्स हैं. वीडियो में क्या होता है, आप That's right. आप 5 ऐप वो उठाओ, क्या बोलते हैं, मेरे को सिर्फ आपको ये see this is a rehearsal, okay, so what is we have to do is कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है. वो तो पता है, परफेक्शन नहीं चाहिए मुझे, मैंने खुद ही बोला इम्परफेक्शन इज द रियलिटी. तो आप बस स्टार्ट करो, स्लाइड शो बनाओ. बहुत सारे ऐप हैं जिनसे आप स्लाइड शो बना के दिखा सकते हो. ओके सिंपल. सर, ठीक है. थैंक यू. Yeah, there was one idea about online counseling session. So, Mimansha, Okay, would you great. like to discuss it? यस सर. सर please, एक्चुअली दीज डेज मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा बातें की जा रही हैं. तो ऐसा हो सकता है कि जो पेशेंट मेंटल हेल्थ के अंडर मतलब गो थ्रू कर रहा है, उसका ऑनलाइन काउंसलिंग हो सकता है साइकोलॉजिस्ट के साथ. तो वो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं और साइकोलॉजिस्ट उनको सजेशन दे सकते हैं कि जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और कम हो सके. तो वो ऑनलाइन इंटरेक्ट कर सकते हैं ताकि कुछ गलत स्टेप ना ले सकें वो. और ऑनलाइन काउंसलिंग जैसे कि और भी ये एक्चुअली क्या हुआ कि वही वाली बात है, ये भी 100% एप्लीकेबल है, पर ये कॉम्पिटिटर हो गया. आप व्हाट्स योर गुड नेम? मीमांसा. हाँ, मीमांसा. तो आप परनीता के कॉम्पिटिटर हो गए. आप दोनों अलग अलग टीम में हो. यस. हाँ, तो अब आप अपना बताओ. वो सेम है कॉन्सेप्ट, इंडस्ट्री सेम है, इंडस्ट्री मेंटल हेल्थ है, और वो अपने हिसाब से अपनी मार्केट करेगी अपनी कंपनी को, और तो आप अपनी तरफ से अपने स्टार्टअप को मार्केट करोगे. तो 2 आइडिया सेम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप, मुझे पता है आप अलग तरीके से, को सबका थिंकिंग प्रोसेस अलग होता है. आप अलग तरीके से उसको, जैसे स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट है, दोनों ई कॉमर्स है, बट फिर भी दोनों डिफरेंट है. वैसे ही आप उसको डिफरेंशिएट कर लोगे. आई नो. तो आपका भी आइडिया अप्रोक्सीमेटली सेम है, पर अगेन डोंट गो फॉर ऐप वेब. बहुत बड़ी बातें हैं ये, मतलब ऐप बनाने में 10 लाख का खर्चा आता है, और ऐप को सक्सेसफुल करना बहुत डिफिकल्ट है. ऐप में रिटेंशन, ऐप के प्रॉब्लम क्या है, मैंने ओला का कैंपेन किया था जब इंदौर में लॉन्च हुआ था ओला, और फिर मैंने बहुत सारे मीडिया कंपनीज के डाउनलोड कैंपेन किए थे. तो क्या होता है, लोग ऐप डाउनलोड तो कर लेते हैं, पर उसको अनस्टॉल मार देते हैं 10 दिन में, 5 दिन में. जब तक अगर लोग वही वाला ऐप रखते हैं जिसमें हमेशा उनका यूज होता है या उनका बेनिफिट्स मिलते रहते हैं, जैसे कि कुछ वाउचर्स मिल गया, कुछ टिकट्स मिल गई, कुछ मिलता रहता है, तो वही रखते हैं उसको, ऐप को. इसलिए ऐप इंडस्ट्री में घुसना वो समझदारी नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, वो बहुत पैसा लगाना पड़ता है. तो बेटर है पहले आप एक वेबसाइट बनाओ, पहले सोशल मीडिया से स्टार्ट करो. सोशल मीडिया फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है, आपका पूरा आपके दिमाग से काम करना है आपको. उसके बाद जब आपके पास थोड़ा बहुत अर्निंग आ जाए तो वेबसाइट बनाओ. फिर वेबसाइट बढ़िया, जब आपके पास वेबसाइट में 10,000 यूजर बन जाए, 5,000 यूजर बन जाए, फिर आप ऐप बनाओ. हर चीज कैलकुलेटिव होनी चाहिए. तो दिस इज द थिंग. या तो आपके पास बैकग्राउंड में पैसा है, आपकी बैकअप है आपके पास, अच्छा है, आपके पास मिनिमम 30 लाख रुपीस पड़ा हुआ है, तो आप ऐप से भी स्टार्ट कर सकते हो. सो दैट इज द रियलिटी, हार्श रियलिटी. ठीक है. Okay, sir. Sir, and one more thing, कि online counseling session for students means career counseling session or something like that also can be done. कर सकते हो वही, मतलब हाँ. अब ये है ना, ये आपकी यूएसपी हो गई. जो लास्ट वाले आइडिया में हमने डिस्कस किया था, उसमें वो सिर्फ इसी के बाद आप इसमें एक और वैल्यू एडिशन डाल रहे हो, तो उस पर आप पैसा कैसे बनाओगे ये सोचना पड़ेगा. मतलब अगर सपोज वो काउंसलिंग सेशन का वो वाली कंपनी 500 रुपए ले रही है, तो आप भी 500 रुपए में दोगे, तो फिर आप बचाओगे क्या. तो दैट इज अ थिंग, बट इट इज वर्केबल, नो डाउट. मतलब आप उस पर कैटेगराइज कर दो कि जैसे पर्सनल इश्यूज भी सॉल्व होंगे और प्रोफेशनल इश्यूज भी सॉल्व होंगे, क्योंकि दोनों डिफरेंट होते हैं. जैसे कि जनरली पर्सनल इश्यूज क्या होते हैं, जैसे कि सपोज वो जो रिलेशनशिप वाले इश्यूज होते हैं ना, वो पर्सनल इश्यूज में आ जाते हैं. प्रोफेशनल इश्यूज क्या होते हैं कि मैं जॉब में मन नहीं लगता, या मैं अभी मेरे को जॉब ही नहीं मिल रहा है, या मिल रहा है तो अच्छा नहीं मिल रहा है, या फिर मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं है अपने काम से, मेरा बॉस मुझे पसंद नहीं है. तो ये प्रोफेशनल एरिया हो गया. पर्सनल एरिया क्या है कि देयर इज लाइक वन रिलेशनशिप इश्यूज जो होते हैं, तो रिलेशनशिप कंसल्टेंट्स भी होते हैं. तो
वो जो परिणीता बात कर रही थी, वो कर रही थी शायद सिर्फ पर्सनल स्टफ पे, आप पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जा रहे हो तो और ये बड़ा आइडिया हो गया। तो इट्स वर्केबल, create a deck and create a content basically. Yes, sir. Okay, thank you. Next, anyone? So there is one more suggestion. Can we work out on Kirana app, like Kirana shop के लिए क्या ये workout कर सकते हैं? They have the idea of positioning an app with the name Zaruri app. तो जिसके थ्रू जरूरी तो ऑलरेडी है, जरूरी तो ऑलरेडी एक ऐप है कि शॉप किराना ने लॉन्च किया है। ओके, ठीक है, वो जो भी उनका होगा, दे माइट चेंज द टाइटल। एंड शॉपिंग के लिए, किराना शॉपिंग के लिए दे जस्ट वांट टू एड अप इन द एग्जिस्टिंग कंपटीशन, क्योंकि ऑनलाइन किराना के लिए तो बहुत सारे एप्स हमारे पास अवेलेबल है। सो दे स्पेस बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा स्पेस है, घुसा जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। राइट, मैं बता रहा हूँ ना आपको, ऑनलाइन जैसे ऐप का नाम कुछ और रखो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी भी ऑफलाइन स्टोर्स चल रही हैं और ऑनलाइन ग्रोसरी एप्स भी चल रहे हैं, और अभी भी आप एक और नया ऐप लेके आओगे या नया कंपनी लेके आओगे ग्रोसरी सप्लाई करने का, वो चलेगा ही चलेगा। व्हाई? बिकॉज आपको मैं ये बताऊं कि जैसे मैं बिग बाजार से सामान लेता हूँ, मैं रिलायंस फ्रेश से लेता हूँ, मैं डी मार्ट से लेता हूँ, पर मैं लॉयल कहीं का भी लॉयल कस्टमर नहीं हूँ। राइट। अब क्योंकि मेरा मन किया तो मैं बिग बाजार चला गया, मेरा मन किया तो मैं डी मार्ट चला गया। तो जहां पे लॉयलिटी नहीं होती ना, जो कस्टमर लॉयल नहीं है अपने सेलर के लिए, इसका मतलब वो इंडस्ट्री में बहुत स्पेस है। तो सर इस ग्रुप को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा ऑन देयर यूएसपी, लाइक शॉप किराना या बिग बाजार या डीमार्ट छोड़ के आपके थ्रू क्यों ग्रोसरी ऑर्डर करें? मैं वही उसकी प्रॉब्लम बता रहा हूँ ना, इस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम। मैंने क्या बताया, प्रॉब्लम इंसान की नहीं होती, इंडस्ट्री की होती है। इस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है ग्रोसरी वाले कि लॉयल्टी कस्टमर नहीं होते हैं, कस्टमर जो है वो लॉयल नहीं होते हैं। तो आप ऐसा कुछ बनाओ कि आपके लिए आपका कस्टमर लॉयल हो जाए। तो वो कैसे होगा? जब आप आप ऐसी टीम बनाओ, मतलब जो डिलीवरी बॉय है ना, वो रिलेशनशिप मैनेजर की तरह काम करे आपकी कंपनी में। मतलब ऐसे ग्राहक, मतलब डिलीवरी बॉय, अभी क्या है, लोगों ने ग्रोसरी स्टोर वालों ने क्या रखा है कि ऑनलाइन डिलीवरी करो ना, तो जो डिलीवरी बॉय रहता है ना, उसका मुझे बिहेवियर पसंद नहीं आता है। वो आएगा, डिलीवरी देगा, कैलकुलेट करेगा और चला जाएगा। बट वहीं पे अगर डिलीवरी बॉय एक रिलेशनशिप मैनेजर है, इमेजिन कि वो आता है और बोलता है हेलो, जैसे सपोज वो मेरे यहाँ आता है, या तो मेरी मॉम से मिलता है, तो मेरी मॉम को बोलता है हेलो आंटी जी, कैसे हैं आप, सब आपके घर में बढ़िया है? अच्छा, आपको तो ये दाल पसंद है, वो दाल पसंद है। जितना ज्यादा कनेक्टिंग वो इंसान होगा, सेल्स मैनेजर कम रिलेशनशिप मैनेजर ज्यादा, ऐसे डिलीवरी बॉयज होने चाहिए उस कंपनी में, तो वो एक नई कंपनी बन जाएगी। Okay, so probably this group could work out on having such kind of idea, and they'll be presenting through their slides. Yeah, exactly. One of the idea is providing the maid at your doorstep, क्योंकि मेड की प्रॉब्लम अभी बहुत ज्यादा हॉरिबली अराइज हुई है। पर अभी भी मेड्स बहुत भाव खा रही है। मैं सारे काम खुद ही करता हूँ अपने और मैं अकेले ही रहता हूँ अभी भी। मतलब that is the industry which would always be in demand. yeah, exactly. Means one of my friend live in US, so again मतलब इंडिया में थोड़ा सा अभी भी हम उतने पॉलिश्ड नहीं है, पर वो मतलब she's a बेसिकली उसके डैड जो है वो MLA है, तो वो आज से 6 साल पहले यूएस शिफ्ट हो गई, तो आज वो सारे काम करती है घर के। पहले नहीं करती थी, यहाँ उसके बहुत सारे मेट्स थे, सब थे। तो मैंने पूछा कि क्यों यार, तू इतनी मेहनत कब से करने लगी? तो वो बोलती है कि क्या करूँ, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती यहाँ पे मेड सर्विसेज। तो बेसिकली क्या होता है, वो भी बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है, वो कोई छोटा मोटा जॉब नहीं है। मतलब अगर आप किसी को अपना टॉयलेट क्लीन कराने के लिए बुला रहे हो ना, तो उसका कॉस्ट होता है $5 to $10 पर आवर। मतलब इंडियन करेंसी में इट्स अराउंड 700 रुपीज पर आवर। तो आप 4 घंटे में साफ किया उसने तो आप लुट जाओगे। मतलब अपन देसी लोग हैं। तो ऐसा ही सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं ना, मतलब इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं अच्छी बात है, पर
हार्डकोर उसका लेबर लग रहा है, तो पैसा तो देना पड़ता है, तो So उस I पे भी think वही I think this group can work out on मतलब जो पेमेंट करना है that will be in terms of Indian currency. We cannot afford 700 rupees हाँ to a maid for 1 hour or हाँ 2 hours. नहीं नहीं, So ये उनके लिए दैट आई एम सेइंग, पर इसमें क्या होना चाहिए, जो मेड होनी चाहिए ना, उसका हाँ क्वालिटी बहुत एनहेंस होना चाहिए। फिर वो ऐसी मेड नहीं हो कि मतलब ट्रेनिंग होनी चाहिए उस मेड की, कि वो ओके प्रॉपरली जाए, तब आप उसका आर्ली बेसिस पे चार्ज कर सकते हो। कि अगर आप आर्ली बेसिस पे अगर हमारे यहाँ से मेड आपको लेनी है, जैसे आपको हम्म एक दिन के लिए मेड लेनी है, तो वो हम्म उसका आर्ली 50 रुपीज पर आवर रहेगा। तो अगर आपने 2 घंटे के लिया तो 200 रुपए हम मिनिमम चार्ज करेंगे। तो दैट इज करेक्ट लाइक अभी के बेसिकली, पैंडेमिक या एरिया में she must have gone through the medical clearance certificate कि वो she is not corona positive or does not have any problem. So this could be their positioning एग्जैक्टली statement वही also. प्रिकॉशंस। हाँ एग्जैक्टली, तो पॉसिबिलिटीज है, मतलब अच्छा आइडिया है, ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। मतलब आइडिया सभी कुछ अच्छा होता है, कभी भी ना कोई आइडिया फेल नहीं होता, इंसान फेल होता है, उसके पीछे की जो टीम होती है ना वो फेल होती है। क्योंकि हम्म आइडिया कोई भी बुरा नहीं होता, आप हर आइडिया को, एक आइडिया को पकड़ो, वो मतलब ऐसा होता है ना कि बीज से प्लांट बनाने की कहानी होती है, इसमें टाइम लगता है। तो करेक्ट दैट इज अ गुड आइडिया। तो ये भी एक आइडिया हो गया। और नेक्स्ट, वोकल फॉर लोकल, ये वैभव जैन। Vaibhav, would you please आई discuss हैव, what exactly you Hello. want to do with your plan? Yes, sir. या हाय, Actually, हाय वैभव I, जैन। hello, sir. या Sir, I या हाय had an बताओ। idea, like just like Amazon and Flipkart, just to provide a platform in which, cause I मतलब हर किसी को वो प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो सिर्फ इंडिया के हों। ओके क्योंकि ग्रेट। अभी मैंने देखा, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता है कि यार कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी कंपनी इंडिया की है, कौन सी बाहर की है। लोगों को पहले सुपर, वो बहुत सर्च अच्छा आइडिया। करना पड़ रहा है। तो बहुत अच्छा मैंने आइडिया फिर है इस पे ये। काम भी किया था, मैंने ऑलमोस्ट हाफ वेबसाइट भी बनाई थी, लेकिन फिर ड्रॉप कर दिया था। उसपे मतलब काफी काम करा था मैंने, पेपर वर्क भी थोड़ा बहुत करा था, मतलब ऑन द जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द इनिशियल स्टेज। ये डैग बनाओ आप, ये आपकी, मैं बता रहा हूँ, ये डैग जब बना लोगे ना आप, तो आपका मेंटल स्टेट बहुत क्लियर हो जाएगा, कि आपको आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम होता है हमेशा। कैन यू कम इन वीडियो कॉल? कांट राइट नाउ सर, सॉरी। Vaibhav, just ओके, share, keep your video on. नो इश्यूज, चलो नो इश्यूज, नो इश्यूज, नो इश्यूज। मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखना चाह रहा था, कि आप एक्चुअली इस आइडिया को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हो। तो कॉन्फिडेंस लेवल देखने के लिए ना आई कांटेक्ट करना पड़ता है, इसलिए मैं वीडियो के लिए बोल रहा था आपको। For you, सो you may keep your video on, Vaibhav, for the time being. इफ पॉसिबल, नहीं, इफ ही इज कंफर्टेबल देन, अगर इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन इट्स ओके, नथिंग Yeah, विल that is fine. बेसिकली। You're Am I ओके appealing visible? on the वैभव। screen. Yes, yes, you're appealing on the screen. हाँ sir. And sir, ओके previously I also worked on the made idea. It was a quite bigger one ओके, in which I included the electricians, plumbers, car wash, and each and everything. आप there is a company called हाँ aapkastock.com, सर, मैंने you वो will get everything around that। बहुत सारी कंपनीज है, मैंने उसकी रिसर्च भी करी थी। मोस्टली सब बेंगलोर एंड दिल्ली से है, स्टार्टअप्स हाँ जो भी हाँ है। उसमें मतलब वो हाँ मेड एग्जैक्टली। हाउस क्लीनिंग, आपका मतलब गुड्स आपके जो हाउस शिफ्टिंग का है, एवरीथिंग दे प्रोवाइड एवरीथिंग। सो आई ड्रॉप दैट एंड स्टार्टेड आइडिया रिलेटेड टू द वोकल ऑफ फॉर लोकल। या सो दैट इज अ गुड आइडिया। मीन्स देखो, वही वाली बात है ना, आइडिया कोई फेल नहीं होता, हम फेल होते हैं। तो बेसिकली हम, आइडिया अच्छा नहीं था, ये था वो था, अरे आइडिया तो क्या होता है, मॉडिफाई हो जाता है। आप काम शुरू तो करो। मैं, आप जो ये बता रहे हो लोकल फॉर, मैं भी फेल हुआ था जब ये आप लोकल वाला जो आइडिया बता रहे हो, वोकल फॉर लोकल, ये तो मोदी जी ने अभी इसको ग्लैमरस बना दिया है। ये हाँ जब सर, मैं इसीलिए 2013 में, हाँ 2013 में, हाँ ये तो अब यही इसको बोलते हैं मोमेंट मार्केटिंग, कि जो मोमेंट में खतर अभी चल रहा है ना। जैसे चंद्र, जब मैंने अपना शोरी लॉन्च किया था डेजल का, तब उस समय चंद्रयान 2 गया हुआ था। तो मैंने बोला कि इसरो ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है और मैंने अपना डेजल डिजिटल 2.2 लॉन्च किया है। तो ऐसे
क्या होता है, जो एग्जैक्ट मूवमेंट होता है ना उनको पकड़ के हमें अपना कंटेंट बना देना रहता है। तो वही है, जैसे आपका ये वोकल फॉर लोकल अभी बहुत हॉट कंटेंट है, और ये कब से कब तक हॉट रहेगा, कम से कम 5-6 महीना तो रहेगा। तो इसी 5-6 महीने में अगर आप इसको लॉन्च करते हो, बहुत अच्छा है। इसको मार्केट करना इतना आसान है ना, मतलब इसमें ऐसा है कि आप बिल्कुल क्लियर बता दो कि यूनिलीवर इंडियन कंपनी नहीं है, पतंजलि इंडियन कंपनी है, तो हमने यूनिलीवर के प्रोडक्ट नहीं रखे हैं, हमने सिर्फ पतंजलि के प्रोडक्ट रखे हैं, हमने हिमालय के प्रोडक्ट रखे हैं। और हर बार वीडियो सिर्फ इसी के लिए बताओ कि ये प्रोडक्ट इंडियन नहीं है, ये प्रोडक्ट इंडियन है। और उसकी हेडलाइन ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल स्लैंग की तरह, प्योर देसी, मेड इन इंडिया, प्योर देसी, बाय प्योर देसी प्रोडक्ट। तो वो बहुत जल्दी वायरल हो जाएगा और बहुत जल्दी वो बिकेगा। और ये बहुत अच्छा आइडिया है, इस पे आप डैग बनाओ और इस पे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी डिस्कस करने में मजा आएगा, क्योंकि अभी जो सिनेरियो है उस सिनेरियो के हिसाब से तो बहुत अच्छे एक्शंस ले रही है गवर्नमेंट भी। यस सर। या एंड तो इस सर पे बनाओ अब डैग। मेड वाला जो आइडिया है उसमें मैंने मतलब ये भी सोचा था कि जैसे कॉस्ट जैसे ज्यादा आती है, तो कॉस्ट कटिंग के हाँ। लिए, कॉस्ट कम करने के लिए अपन जैसे जो लोकल वर्कर्स हैं उनको अपन हायर करें एरिया वाइज डिवाइड करके। ऐसा नहीं कि यार एक एरिया का अपन 4-5 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं, तो अब उससे वही वाली बात है कि ना, वही वाली बात है ना, अब वो आइडिया आपका ना, वो आपका एक्स है, अब आपके पास प्रेजेंट आइडिया जो है ना वो ज्यादा बेटर है, आप उस पर फोकस करो, मत फोकस करो, इट्स गॉन, इट्स ओके। अब आप एक दूसरी टीम उस पर काम कर रही है ना, उसको आप एज अ, वो अगर अच्छा काम नहीं करेगी ना तो उसका कंसल्टेंट आप बन जाना हाँ कि सर देखो मतलब देखो आप लोग, बट डोंट 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 बॉदर ऑनेस्टली। या देखो क्या होता है, जब आइडिया को आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो ना वैभव, तो आप इम्प्लीमेंट करते समय जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व कर रहे होगे ना, तो बेटर होगा कि आप क्या कर रहे हो। पर जब आप अपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया और आप एज्यूम कर रहे हो कि ये प्रॉब्लम आएगी और ये दिक्कत है इस इंडस्ट्री की, तो वो वर्केबल नहीं है। बट ठीक है, इट्स अ गुड वन, आप एटलीस्ट उसको ऑप्टिमाइज कर रहे थे, उस बिजनेस को और बेटर बनाने की कोशिश कर रहे थे। पर वो पता है दिमाग में नहीं बनाना होता है, वो लाइव बनाना होता है। दिमाग में तो बहुत जल्दी, दिमाग में तो खिचड़ी बनानी हो, कुछ भी बनाना हो, फटाफट बन जाता है। पर एक्चुअली लाइव रियलिटी में बनाने में ना बहुत टाइम लगता है। इसलिए एक स्टिक टू, यू हैव टू स्टिक इन वन थिंग। एंड अब आपका आइडिया ये कंफर्म है, तो इस पे ही काम करो। मतलब आप डैग बनाओगे तो लोकल फॉर वोकल, कि मैं एक ग्रोसरी स्टोर बना रहा हूँ, या फिर सॉरी मैं एक ई कॉमर्स स्टोर बना रहा हूँ जिसमें प्योर इंडियन प्रोडक्ट्स रहेंगे, और उसमें मैं मार्केटिंग यही हैशटैग यूज करूंगा, हैशटैग वोकल फॉर लोकल। बहुत कूल आइडिया है, तो उस पे फोकस करो और क्या। सर वो मैंने ठीक made इसलिए बोला था क्योंकि जस्ट टू गिव सम इनसाइट्स इन दैट अबाउट दैट आइडिया टू द पर्सन हु इज वर्किंग ऑन इट, नथिंग आप एल्स। दोनों अलग अलग टीम में हो, आप दोनों अलग अलग टीम में हो। यस सर। हाँ, तो बस नहीं कर रहे हो, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप सेल कर रहे हो, लगना चाहिए कि आप इन्फॉर्मेशन नॉलेज शेयर कर रहे हो। अल्टीमेटली वो उसमें बनेगा। अगर थोड़ा बजट है आपके पास तो उस पे ऐड लगा दो आप। जो भी आप ऐसा कंटेंट बनाओगे ना कि बाय वन गेट वन फ्री, इस बैंगल के साथ ये प्रोडक्ट एक्स्ट्रा है, ये फ्री है, वो फ्री है, तो वो सारा का सारा उसमें ब्रांड अवेयरनेस ग्रोथ कंटेंट बन जाएगा, और वो आपको सारा के सारा बिजनेस भी देना स्टार्ट कर देगा। और ये दोनों चीजें आपको पैरेलली चलानी है। तो इस पे आप अपना डैग बना लो। अगर आप एज अ टीम, आपकी आपकी टीम के साथ मिलके इस पे बहुत सिस्टमेटिक डैग बन जाएगा। और उसके बाद फिर इसमें मार्केटिंग में वही, आपको पहला टास्क ये है कि डैग बनाना है। दूसरा टास्क है कि आपको ये करना है, क्या बोलते हैं, मतलब इसका सोशल मीडिया का सैंपल पोस्ट बनाने, 2 पोस्ट, एक ब्लॉग और एक वीडियो अगर बना सकते हो तो, नहीं तो स्लाइड शो वगैरह भी चलेगा। तो उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को मतलब टू द पॉइंट है कि नहीं। तो ये करना है आपको, ठीक है। Okay, sir. Thank you, sir. Okay, Okay, so welcome. this is all for today. I think students have all the participants have got what they have to do. Rupam is saying offer and deal for Netflix and Amazon Prime and many more other stuff. Yes, sir. Yeah, Rupam, tell me. Sir, like Netflix का head version, Amazon Prime हाँ का, हाँ हाँ हाँ। तो उससे बाद में कर सकते हैं ना अपन, जैसे उसकी ऐप बना ली अपन ने। तो क्या आप नेटफ्लिक्स का क्या बेचना चाहते हो?
या कैसा क्या सर करोगे उसका आप? अकाउंट जैसे जैसे वो 199 पे मिलता है तो उसका हेड वर्जन 150 में देते हैं अपन हम्म। वैसा। और अमेजोन हाँ प्राइम का भी हाँ महंगा ही है 299। तो ये कैसे इसको सस्ता कैसे करोगे कूपन से, इसको इसका सर क्या हेड तरीका है? वर्जन भी तो कूपन मिलता वगैरह है बाय इसका। करना पड़ता हेड वर्जन जैसे इसको हेड चल नेटफ्लिक्स तो। है? ओके, तो इसका आप एक एक वेबसाइट या एक ऐप बना लिया आपने जिसमें सारी चीजें यहाँ मिल जाए, है ना? यस सर। बढ़िया आइडिया। इसका भी आप पूरा डैग बनाओ। डैग कैसे बनाना है वो समझ में आ गया आपको? हाँ सर। ठीक है, तो टैग बनाओ और एक दो पोस्टर्स, एक ब्लॉग और एक वीडियो जरूर बनाना। ब्लॉग कैसा बनाते हैं? टिप्स टाइप का बनाते हैं, ऐसा कि टॉप 5 वेब सीरीज इन नेटफ्लिक्स, टॉप यस 5 सर। वेब सीरीज, टॉप 5 देसी इंडियन वेब सीरीज इन अमेजोन प्राइम। इसके ऊपर ब्लॉग लिख सकते हो। और फिर जो टॉप 5 हैं उनको लिख दिया उसमें, पहला एक अच्छा सा फीचर इमेज लगाया, उसके बाद उसमें लिख दिया। तो ऐसा एक ब्लॉग बना सकते हो आप। और वीडियो अगर बना पाओ तो बड़ा अच्छी रहेगा। हाँ सर वीडियो बनी हुई है मेरे पास एक। चलो सुपर। तो इसका टैग बनाओ आप और अपनी टीम के साथ इसको रेडी करो। अपन फिर नेक्स्ट वीक इसको करते हैं एग्जीक्यूट, Yes, ओके। है ना? now actually we have to end this session. So students will ओके work on their assignments for a week, and on Saturday we are going to meet at 12 p.m. with all the decks ओके। completed with all the teams. Meanwhile, Hello. they can सो contact sir anytime. Hello. या सो या सो लाइक लेट्स डू इट द कंप्लीट क्लोजिंग। सो Yes, sir. So we need to close it now. yes, yeah, Uh, exactly. So I Hello, think sir. I think the yeah, someone is saying something. Yes, sir. I have some doubts. So regarding for 2 minutes, you can Yeah, guide me. Job mail हाँ, बोलो. tell me. Okay, sir. I am Tushar Verma. Sir, I want to start blogging, and I have हाँ also find the niche, but हाँ I have difficulties and confusion regarding the audience and the copyright of the images and the plagiarism. So मतलब कॉपीराइट इमेजेस का, जैसे मैं ब्लॉगिंग टेक्सचुअल फॉर्म में करूंगा स्टार्टिंग में, तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जैसे मैं उसमें इमेज ऐड करूंगा या फिर कुछ मतलब इमेज तो मेरे पास मैं नेट के थ्रू ही फाइंड आउट करूंगा, तो उसमें कॉपीराइट कैसे फाइंड करूंगा, या फिर कॉपीराइट इमेजेस का भी होगा क्या मेरे पे अगर मैंने डाल दिया तो? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये जो है ना बहुत अच्छा काम है। इस पे अमाउंट मतलब बिजनेस इट्स वेरी गुड। बहुत शॉर्ट में आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप देखो गूगल, मतलब मैं वही बताना चाह रहा हूँ, लास्ट सेशन में भी मैंने बोला था गूगल इज नॉट अ गॉड, गूगल इज जस्ट अ कंटेंट फैसिलिटेटर। तो अब गूगल कैसे आइडेंटिफाई करता है कि आपका कंटेंट प्लेगरिज्म है कि नहीं? प्लेगरिज्म मतलब कॉपी पेस्ट कंटेंट को प्लेगरिज्म बोलते हैं। या फिर कहीं ऑलरेडी वो इंटरनेट में अवेलेबल है तो गूगल ने उसको क्रॉल कर लिया कि यार ये तो यहाँ अवेलेबल है, तुमने उसको कॉपी पेस्ट, तुमने क्या किया बेसिकली कंटेंट बनाते समय, तुमने जैसे सपोज जैसे मैं ये वाला ब्लॉग बता रहा हूँ कि 5 टॉप वेब सीरीज इन अमेजोन प्राइम, तो आपने क्या किया कि किसी ने ब्लॉग लिखा है, आपने सेम कॉपी पेस्ट करके वही ब्लॉग फोटोज बदल के मेरे को शेयर कर दिया और वो आपने गूगल में डाल दिया। अब गूगल बहुत स्मार्ट है, वो आपको डिटेक्ट कर लेगा कि आपने ये कॉपी पेस्ट किया है और उसी को प्लेगरिज्म बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो भी वो 5 वाला वर्ड है आपको एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको रीराइट करना है। आपको अपने शब्दों में लिखना है कि जैसे सपोज उसमें जो भी ऑथर ने लिखा होगा उसने अपने शब्दों में लिखा होगा। आपको आप उसको पढ़ोगे तो आपके मेंटल, आपने दिमाग में उसको परसीव किया, वो अपने खुद से लिखो आप। तो गूगल कभी भी आपको प्लेगरिज्म में ब्लॉक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि गूगल यही चाहता है, गूगल चाहता है कि हम कोई कॉपी पेस्ट नहीं करें, हम ऑर्गेनिक कंटेंट प्रोड्यूस करें। तो इसको अगर जैसे सपोज इसको मतलब फिर भी प्लेगरिज्म तब आता है, टेक्स्ट मैचिंग में आता है। जैसे कि सपोज एक लाइन है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये तो कहीं ना कहीं इंटरनेट में स्टफ ही होगी। यस सर, यस सर। हेलो। Hello. I guess. Yeah. यस सर, Yeah, यस सर, आई अंडरस्टैंड। I think now everyone have got their ideas, and I think they have got the
plan what they have to do. They need to make the presentations. All the guidelines have been told by sir very clearly. So thank you, Ratnesh sir, for sparing your valuable time with us and giving all the insights to the students regarding their assignments. I hope all the queries have been solved now, and we are going to meet at 11 July, 12 p.m. Yeah, we'll be meeting on next Saturday with the presentations ready from the groups, and the groups will be presenting through Google Meet only. And further, we'll be discussing the ideas, and the suggestions will be given by Mr. Ratnesh. Okay. Thank you, sir. Cool. Thank you. So let's close it. And all the best for everyone. Guidelines, I think मैंने मेल पे चाहिए हो तो मैं एक मेल आपको शेयर कर देता हूँ स्वाति मैम, और आप वही सेम मेल फॉरवर्ड कर दो आगे सबको. Yeah, you तो you share the guidelines with us, and we'll share those guidelines with the student for getting clear about their concept. Yes. Cool. तो फिर let's meet on the next weekend and let's meet a digital weekend again. Yes, sure. Okay. Okay. Thanks you very much for the time and everything. Okay. Stay blessed. Okay. Thank you. Thank you. Let's Yeah. end up the meeting now. Thank you. Yeah. Cool. See ya.